as resources and डेवलपमेंट पार्ट 2 लेकर के आए हैं हम लोग। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने रिसोर्सेज की डिफिनेशन पढ़ लिया था, उनके टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। अब आज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को देखेंगे। देखिए, नो डाउट रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इमेजिन करिए, अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी। ठीक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन पार्ट 1 that resources are the gift of nature, but they are not free gift. We have to do some human activity for them. But just try to understand, what are we doing? We are doing overutilization. हम over utilize कर रहे हैं resources को, and due to the overutilization of resources we are facing many problems, and the 3 problems are given over here: depletion of resources, concentration of resources, and global economic crisis. First we talk about depletion of resources. Depletion मतलब reduction. देखिए, if you overutilize the resources, it will lead to depletion of resources. Actually, we are getting greedy. Few of the individuals among us are getting greedy, and due to that, resources are being overutilized. Just take an example of petroleum product. Look, at this time, we are using petroleum product in such a way that a situation has come where many countries are started to face the energy crisis. Just try to understand. These are to be maintained for a longer period only when we are going to use sensibly. If we are continuing with our greed, we are going to have depletion of resources. Next is concentration of resources. Just try to understand what is concentration of resources. क्या है ये, इसको भी समझने की कोशिश करिए। Due to concentration of resources, it has happened that the present society has got divided into 2 parts, and that are rich and the poor. Yes, okay, the rich and the poor, and this has happened only due to concentration of resources. If it not might have been, the present society would not get divided into the 2 categories of rich and poor. Other one is global ecological crisis. देखो, as we are doing overutilization of resources, it has led to a global ecological crisis. जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का नाम आपने सुना होगा, पॉल्यूशन आपने सुना होगा, लैंड डिग्रेडेशन आपने सुना होगा। ये क्यों हो रहा है? लैंड डिग्रेडेशन, depletion of ozone layer, pollution, global warming, all are global ecological crises, and these all are taking place only because of overutilization of resources. We should understand that. And we should know that how the resources should be used and what amount should be used. This should be known. देखो, मैं ये नहीं कहता कि रिसोर्सेज को यूज ही ना करें, डेवलपमेंट की बात ही नहीं करें, फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन काफी सोच समझ के होना चाहिए। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू यूज रिसोर्सेज इन जुडिशियस एंड रेशनल वे। आई एम अगेन टेलिंग, जुडिशियस एंड रेशनल वे। रेशनल वे, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, एक फूडिंग आप लेते हो, अगर आप अपनी आवश्यकता से ज्यादा फूडिंग कर लेते हो तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। इन टेकिंग मोर एंड मोर कैलोरी कैन मेक यू बल्की, इट माइट काउज इंडाइजेशन।
सिमिलरली अगर ग्रीड को पूरा करते करते हम सारी रिसोर्सेज को खत्म करते चल गए तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. वी शुड अंडरस्टैंड दैट. सो जुडिशियस एंड रेशनल वे should be there regarding to the use of resources. और judicious और rational way पाने के लिए हमें क्या करना होगा? रिसोर्स प्लानिंग. यस, रिसोर्स प्लानिंग. अब आप कहेंगे रिसोर्स प्लानिंग क्या है? नथिंग, ए टेक्निक. दिस इज ए टेक्निक. अच्छा, किस चीज की टेक्निक? ऑफ प्रॉपर और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस. अ टेक्निक of proper or judicious use of resources is called resource planning. समझे resource planning? फिर समझिए. A technique of proper and judicious use of resources is called resource planning. आप कहेंगे कि why we need judicious and proper way of using resources? चलिए, let us talk about that. Let us talk about what is the requirement, why we need resource planning. अब इस नीड की बात करेंगे तो 6 नीड्स मैं आपको दिखाता हूं. सबसे पहला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई. मोस्ट ऑफ, नो डाउट सम ऑफ द रिसोर्सेज आर abundant, but most of resources are limited in supply. If we use them voraciously, we are going to create problems for ourselves. Secondly, many resources are unevenly distributed. There are some areas where there you can have self-sufficient resources available, but there are some area where you can have acute shortage of some vital resources. Just go to Jharkhand and Bihar. These are the two examples. Jharkhand is having self-sufficient resources, but Bihar, there is acute shortage of resources. एक्यूट सा अगर माइनिंग की बात कर लें तो बिहार में क्या है, एक लाइमस्टोन, माइका, ये 2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी और वो भी बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ तो अवेलेबल नहीं है. लेकिन झारखंड के पास कोल, आयरन ओर बहुत कुछ है. तो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां आज भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वहां बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. इसलिए रिसोर्स का डिप्लेशन नहीं होना चाहिए, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए. एक बात और समझिए, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन लीड टू पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट. आप ओवर यूटिलाइज करेंगे, एनवायरमेंट का पॉल्यूशन होगा. अच्छा, थोड़ा सा भी लॉकडाउन के समय में थोड़ा सा एक चीज समझिए कि अभी कुछ दिनों से गाड़ियां नहीं चल रही हैं ज्यादा. रिजल्ट क्या है? आज का एनवायरमेंट पहले के एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा शुद्ध है. ठीक है. अच्छा, अभी भी तो लाइफ है, ठीक है, बहुत कुछ रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह से हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, हम पॉल्यूशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, एनवायरमेंट को भी गंदा कर रहे हैं. एक बात और समझिए कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू अंडर डेवलपमेंट. इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर अंडर यूटिलाइजेशन किया तो अंडर डेवलपमेंट होगा. अब अंडर डेवलपमेंट होगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी. इसके लिए चाहिए कि हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग हो ताकि उतना यूज करें जितने की हमें आवश्यकता है. एक बात और आप समझिए कि प्लानिंग ऑफ रिसोर्स इसलिए भी जरूरी है कि वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट. इफ यू वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, वी शुड प्लान. देयर शुड बी रिसोर्स प्लानिंग. एक चीज और आप देखिए कि देयर इज नीड टू प्लान ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज ओनली देन वी वुड बी एबल टू डेवलप आवर नेचुरल रिसोर्सेज. हम जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर सकते. और नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप नहीं होंगे तो आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमारे खुद के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इट इज, एक बात समझिए, वी गेट रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर. What is our duty? Our duty is to pass those resources to future generation, to the coming generation, so that their quality of life would be maintained. So how could it be possible? If we do resource planning, we would be able to pass resources to future generation. This is our duty. Don't take it otherwise. This is our duty to pass the resources to the future generation. We cannot end up with all the resources and let future generation to lead a pitiful life. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारे रिसोर्सेज का खुद यूज करें और फ्यूचर जनरेशन को पिटीफुल लाइफ को लीड करने के लिए आगे बढ़े दें. अब देखिए, रिसोर्स प्लानिंग के बाद मैंने अभी आपको कहा था कि ऐसा नहीं है
कि आप डेवलपमेंट ही मत करिए, डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन एक बात और आपको समझने चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की होती है वो चर्चा होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखो, डेवलपमेंट दैट शुड टेक प्लेस not at the cost of environment, ऐसी डेवलपमेंट जो कि एनवायरमेंट की कॉस्ट पे नहीं हो, ठीक है, एंड कीप इन माइंड द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन को भी अपने में सोच कर चले कि फ्यूचर जनरेशन की नीड को कैसे मेंटेन किया जाए। तो इसे आप कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यू कैन कॉल इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इफ वी just do it, we are going to benefit our environment, we are going to maintain the quality of life at present, and we are going to maintain the quality of life. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक की बात क्लियर हुई। अब जरा सा हम बात कर लें रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करेंगे। अभी यहां तक रहने देते हैं। थैंक्स।